خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دریائے راوی میں اونچے درجے کے سیلاب کی، جبکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سول ڈیفنس اور ریسکیو کا عملہ دریائے راوی پر تعینات ہے۔ مزید جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ شاہزیب بتائیے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں راوی کے کنارے پر موجود ہوں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا تمام تر اداروں کو کہ فوری طور پہ احتیاطی تدابیر اپنا لیں، کیونکہ 48 گھنٹے جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں، جہاں پہ سیلاب جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اونچے درجے کے سیلاب کے خدشات کو ظاہر کیا جا رہا ہے اور راوی اور چناب جو ہے وہ سیلاب ان میں آ سکتا ہے۔ اس وقت راوی کے کنارے پر میں موجود ہوں، جہاں پہ 36,000 کیوسک لیٹر کے حساب سے جو ہے وہ پانی گزر رہا ہے، اور یہاں کے جو سول ڈیفنس افسر ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر کو اپنایا گیا ہے اور سائرن بھی بجائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہاں پہ مقصد کے محکمہ سول ڈیفنس اور ریسکیو، یہ دونوں ٹیمیں مقصد کے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ محکمہ سول ڈیفنس کا جو کیمپ ہے یہ پرماننٹ یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں، سائرنگ بورڈ میں رکھ کے بھی چلائے گئے ہیں۔ دیکھیں، پہلے پانی کی سطح بالکل نیچے چلی گئی تھی، ابھی پانی کی سطح جو یہ زیادہ بلند ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، محکمہ سول ڈیفنس اور ریسکیو ہر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل یہاں پہ پرفیکٹ ٹیمیں تیار کھڑی ہیں۔ جی بالکل، ٹیمیں بالکل تیار کھڑی ہیں، اور جو علاقے راوی کے ارد گرد جو خانہ بدوشوں کے کیمپس تھے ان کو بھی یہاں سے ہٹا لیا گیا ہے۔ پیرا فورس کے ذریعے بالکل یہاں سے جو ہے وہ علاقہ خالی کرا لیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو۔ تاہم جو پی ڈی ایم اے ہے ان کی جانب سے یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور کسی بھی وقت یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، لیسکو کے 60 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ فیڈر ٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند۔ شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، بارش کے باعث لیسکو کے 60 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ فیڈر ٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ ٹرانسفارمر جلنے کی شکایات بھی بڑھ گئیں۔ کلا گجر سنگھ، مغل پورہ، مصطفیٰ آباد، شالیمار، باغبان پورہ، راوی روڈ میں گھنٹوں بجلی بند رہی۔ شاہدرہ، گلشن راوی، سمن آباد، والٹن روڈ، چبرجی پارک کے علاقے بھی بجلی سے محروم رہے۔ گارڈن ٹاؤن اور انگوری باغ کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب رہی۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ لیسکو کے فیلڈ سٹاف کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جو ہی بارش بند ہوتی ہے بجلی کی بحالی کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی، بھارت کا حالیہ جنگ کے بعد پاکستان کے ساتھ پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ۔ بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو دریائے توی اور ستلج میں ممکنہ سیلاب سے آگاہ کیا ہے۔ سنتاس معاہدے کے بعد بھارت اس بات کا پابند ہے کہ وہ دریاؤں میں پانی کی صورتحال کے بارے میں پاکستان کو معلومات کی فراہمی جاری رکھے۔ مون سون کے دوران پاکستان کے لیے ان معلومات کی فراہمی بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے، لیکن بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد ان معلومات کی فراہمی کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ مئی سے معاہدے کی معطلی کے بعد پہلی مرتبہ بھارت نے پاکستان کو دریاؤں میں پانی کی صورتحال کے بارے میں آگاہی فراہم کی ہے۔ اتوار کو بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا گیا تھا کہ دریائے چناب کے معاون دریائے توی میں پانی کا بہاؤ اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال اختیار کر چکا ہے، جس کے باعث چناب میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا کہ بھارتی ہری کے پتن سے دریائے ستلج میں پانی کا ریلا چھوڑ سکتا ہے۔ اس تناظر میں پاکستان پیشگی حفاظتی اقدامات اٹھا لے۔ یہ اطلاع اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ دریائے ستلج میں پہلے ہی گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,57,000 کیوسک تک پہنچ چکا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہری کے پتن سے گنڈا سنگھ والا تک پانی کا ریلا پہنچنے میں 18 سے 20 گھنٹوں تک کا وقت صرف ہوتا ہے۔ بارش میں گرما گرم پکوانوں سے مزہ دوبالا، شہریوں کی بڑی تعداد سہانا موسم انجوائے کرنے کے لیے کھابوں کی دکانوں پر پہنچ گئی۔ بچے، بوڑھے، جوان سب گرما گرم سموسوں پر ہاتھ صاف کرتے دکھائی دیے۔ بارشوں سے شہر کا موسم ہوا بے ایمان، سارا دن ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں۔ شہریوں نے سہانے موسم کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے چٹپٹے مزیدار کھابوں کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ بچے، بوڑھے، جوان سب گرما گرم سموسوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہو تو دل کرتا ہے کہ گرم اور خستہ سموسے کھائے جائیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے سموسہ کھانے کا، بہت حسین موسم ہے، اس وجہ سے سموسہ کھانے کے لیے یہاں پہ رکے ہیں۔ موسم بہت خوشگوار ہے اور میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی سموسہ خریدا ہے، اور بارش کا موسم ہے، اس میں سموسے بہت ان کے مشہور اور بہت اچھے ہیں۔ شہری نہ صرف خود سموسے کھاتے رہے بلکہ گھر والوں کے لیے پیک کروا کر بھی لے جاتے دکھائی دیے۔ کیمرمین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ شہر کے باسی کچرا بل ادا کرنے کے لیے ہو جائیں تیار۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں کوڑا بل نافذ کر دیا گیا۔ کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بعد رہائشی اور کمرشل صفائی فیس کے اہداف مقرر۔ شہر میں 5 تا 40 منزلہ عمارت کو 300 سے 5,000 روپے کا ماہانہ کوڑا بل ادا کرنا ہوگا۔ بڑے سائز کی دکان پر
3000 रुपये कूड़ा टैक्स नाफिज। LWMC का कहना था कि आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा, लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई फीस नाफिज कर दी गई। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद कमर्शियल और रिहायशी कूड़ा फीस का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। शहरों में 5 से 40 मरला इमारत को 300 से 5000 रुपए माहाना कूड़ा बिल मिलेगा। देहात में 5 से 40 मरला इमारत का माहाना बिल 200 से 400 रुपए होगा। 6 से 10 मरला शहरी मकान पर 500 और दीही घर पर 200 रुपए कूड़ा फीस नाफिज। 10 से 20 मरला शहरी घर 1000 और दीही घर 400 रुपए सफाई फीस अदा करेगा। शहरों में 2 केनाल के घर पर 2000 जबकि 40 मरले से जायद घर को 5000 कूड़ा फीस देना पड़ेगी। शहरों में छोटी दुकान पर 500 जबकि देहात में 300 रुपए कूड़ा फीस नाफिज की गई। अर्बन दरमियानी दुकान पर 1000 और रूरल को 700 रुपए कूड़ा फीस अदा करना पड़ेगी। शहरों में बड़े साइज की दुकान पर 3000 रुपए कूड़ा फीस नाफिज। देहात में बड़े साइज की दुकान को 2000 रुपए कूड़ा फीस देना होगी। सैनिटेशन बिलों की प्रिंटिंग जारी, आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। इब्तदाई तौर पर पोश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से फी मरला बिल लिया जाएगा। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। शहरी बिल की अदायगी बैंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन से कर सकेंगे। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब शकील अहमद मियां का कहना है कि सैनिटेशन बिल काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बजट 2025-26 में अहम इंकशाफात। 2 बड़ी हाउसिंग स्कीमों में तरक्याती मंसूबे गवर्निंग बॉडी से मंजूर ही न करवाए गए। अथॉरिटी ने बगैर मंजूरी तरक्याती काम कराने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बजट 2025-26 में होशरुबा इंकशाफात। LDA एवेन्यू 1 और गुलबर्ग स्कीम में तरक्याती मंसूबों के लिए गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ही न ली गई। जराये के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी को भी मुकम्मल तौर पर लाइलम रखा गया। LDA एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम के लिए गुज़िश्ता 12 साल में 4 बार फंड्स की मंजूरी ली गई। ताहम इस मुद्दत के दौरान 8 अरब रुपए खर्च किए गए। तरक्याती काम कहाँ हुए, इस मामले से गवर्निंग बॉडी लाइलम रही। बजट 2025-26 में शोबा इंजीनियरिंग ने एवेन्यू 1 पूरी स्कीम के लिए फंड्स का तकाजा किया, मगर गवर्निंग बॉडी ने इनकार कर दिया। अथॉरिटी ने फैसला किया कि हर नया तरक्याती मंसूबा सिर्फ गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद ही शुरू होगा। बगैर मंजूरी तरक्याती काम कराने पर अथॉरिटी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इस सूरत हाल के पेश नजर स्कीमों में तरक्याती कामों के लिए सुपरवाइजरी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। गुलबर्ग स्कीम के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पर फंड्स देने का केस डेफर कर दिया गया। अथॉरिटी के मुताबिक हर सड़क के लिए अलहदा फंड्स फराहम किए जाएंगे ताकि निगरानी और शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के शहरियों के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट की तैयारी। ट्रैफिक मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का मंसूबा ज़ेर गौर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मंसूबे का मास्टर प्लान तरतीब दिया जा रहा है। शहर के दरीना ट्रैफिक मसाइल और शहरियों की सहूलत के लिए हुकूमत पंजाब ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबा मुतारिफ करवा दिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई तफसीलात पर गौर किया गया। मनसूबे के तहत शहर की मरकजी मार्केटों को शहर से बाहर मुंतकिल करने और मोटरवे के करीब बस टर्मिनल के कयाम का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। मनसूबा गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से मोटरवे M2 तक सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत फराहम करेगा। मनसूबा बरसाती नाले के ऊपर तामीर किया जाएगा और शहरियों के लिए 6 बड़ी शाहराओं पर इंटरचेंजेस भी कायम किए जाएंगे। मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल कम होंगे। महकमा हाउसिंग के मुताबिक मंसूबे की माहौलियाती स्टडी मुकम्मल होने के बाद तफसीली प्लान वज़ीर आला पंजाब को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं रेलवे पुलिस की मदद की जाएगी। मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। FC इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में रेलवे पुलिस से पूरा ताउन करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान रेलवेज की सिक्योरिटी पर इकदामात का जायजा लिया गया। रेलवे लाइन्स और ट्रेनों की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। रेलवेज की अराजी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि FC इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में रेलवेज पुलिस से पूरा ताउन करेगी। रेलवेज ट्रैक और ट्रेनों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा। रेलवे पुलिस की मदद की जाएगी। मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। इजलास में इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रेलवेज की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए हनीफ अब्बासी के दौर में मुनफरिद इकदामात को सराहा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने तजावुज़ात के खात्मे के लिए फेडरल रिजर्व पुलिस की मुआवनत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। N129 में ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी। हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान की इंतखाबी मुहिम में तेज़ी। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद खान, सियासी रहनुमा इश्तियाक अहमद और दीगर ने इंतखाबी मुहिम में शिरकत की।
NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अवाम से बराह रास्त मुलाकातें की गईं और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की। इंतखाबी मुहिम में शरीक राना मशहूद अहमद खान ने कहा, हल्के का हर नौजवान इस मुहिम का हिस्सा है। PP 172 के शेरों और शहरियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये इलेक्शन NA की सीट जीतने का नहीं बल्कि हल्के को जो हक छीना गया था उसे वापस लेने का वक्त है। ये इलेक्शन सिर्फ एक NA की सीट जीतने का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन जो 2024 में इस हलके के साथ धांधली की गई थी, इस हलके का जो हक छीना गया था, सबसे पहले वो हक वापस लेने का इलेक्शन है। इस मौका पर मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि ये सीट जीतकर हम मियां नवाज शरीफ को तोहफा देंगे। आइंदा आने वाले दिन अहमियत के हामिल है। मुल्क ने अब तरक्की की मनाजिल को तय करना है। आइंदा आने वाले दिन इस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि पाकिस्तान को जिस मुआशी तरक्की की मंजिल की जानिब नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जिस तरक्की की जानिब गामजन है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए कि नवाज शरीफ जब आता है तो खुशहाली लाता है, नवाज शरीफ जब आता है तो रोजगार लेके आता है। यूसी नवासी में खिताब करते हुए मियां नुमान ने कहा, बेरोजगारी का मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। महंगाई ने जीना महाल कर दिया। सब्ज़ मसाला जात की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी। मौसमी सब्जियां और फल भी कुव्वत खरीद से बाहर। ग्राम फरोशी ने गरीब को जकड़ लिया। महंगाई और ग्राम फरोशी मुसीबत बन गई। सब्ज मसाला जात, मौसमी सब्जियां और फल पहुंच से दूर। सब्जी मंडियों, गली मोहल्लों और पोश इलाकों में अशिया जरूरिया के अलग अलग रेट मुकर्रर हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गयी। परचून में प्याज 100 रुपए, टमाटर 140, लहसुन 400 रुपए, अदरक 600 रुपए फी किलो है। खीरा 140 और शिमला मिर्च 220 रुपए फी किलो बेची जा रही है। फल खरीदना भी ख्वाब बन गया। सेब दर्जा अव्वल और अंगूर 420 रुपए, आड़ू 400 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। केले दर्जा अव्वल 260 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अगर रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता तो इंतजामिया इसका इजरा भी बंद कर दे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। UHS के सिंडिकेट इजलास का इनेकाद प्रोफेसर ज़ोहरा खानूम बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेडिसिन की नई सरबराह नामजद, जबकि शफाफ इम्तहानात के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सिटी का रीजनल डायरेक्टर मुकर्रर करने का फैसला किया गया। प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की ज़ेर सदारत इजलास में सिंडिकेट ने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नर्सिंग का नाम तब्दील करने की मंजूरी दी। इजलास में फैसला किया गया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज, लेवल 2 प्रोग्राम्स और MCPS प्रोग्राम्स के हवाले से पंजाब हुकूमत की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इम्तहानात में इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल और साइबर बेस्ड नकल की रोकथाम के लिए नए कवायद और ज़वाबित की मंजूरी दी गई। IPH कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी लाहौर का कंसेप्चुअल कॉलेज करार देने के फैसले की तौसीक की गई। पुलिस एहलकारों से मिलकर भाई को तावान के लिए अगवा करने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। CCD इंस्पेक्टर आतिफ इमरान ने मुलजिमान को अदालत पेश किया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमान से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद 7 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमान में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। ज़्यादती के मुक़्त में मुलव्विस मुलजिम मकसूद की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मुलजिम की ज़मानत मंसूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अबहर गुल खान ने केस की समाअत की। अदालती कार्रवाई के दौरान मुद्दइया के वकील ने मौक़िफ़ बनाया कि मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है और 1 साल तक इश्तिहारी रहा। जिस दिन वक़ूआ हुआ उसी दिन FIR दर्ज की गई। जस्टिस अबहर गुल खान ने इस्तफसार किया कि क्या मुतासरा मुद्दइया ने किसी फोरम पर कोई बयान रिकॉर्ड कराया। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम का DNA टेस्ट हो चुका है और मुद्दइया के बयान हल्फी के बाद मुलजिम को बेगुनाह करार दिया गया था। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करने का हुक्म जारी किया। रेलवे गार्ड पर तशद्दुद का मामला। IG रेलवे पुलिस ने वफाकी वज़ीर को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी। रेलवे पुलिस बहावलपुर के कांस्टेबल नदीम को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। तशद्दुद करने वाले कांस्टेबल के खिलाफ मुतासरा गार्ड की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। रेलवे गार्ड पर तशद्दुद का यह मामला है। IG रेलवे पुलिस ने वफाकी वज़ीर को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी है। रेलवे पुलिस बहावलपुर के कांस्टेबल नदीम को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। तशद्दुद करने वाले कांस्टेबल के खिलाफ मुतासरा गार्ड की मुद्दत में मुकदमा भी
درج کروا دیا گیا ہے، مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے اور اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ رپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس رپورٹ کے بعد اب اس حوالے سے مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے۔ تشدد کرنے والے کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے اور یہ مقدمہ گارڈ کی مدیت میں درج کروایا گیا ہے۔ نائب کپتان پاکستان ٹی20 ٹیم شاداب خان صحتیاب ہونے لگے۔ شاداب خان کے کندھے کی سپورٹ کے لیے لگا سلنگ ڈاکٹرز نے اتار دیا۔ شاداب خان نے 5 جولائی کو انگلینڈ میں اپنے کندھے کی سرجری کرائی تھی۔ شاداب خان انجری کے باعث ایشیا کپ اور 3 ملکی ٹی20 سیریز سے باہر ہو چکے ہیں۔ نورا ویسٹ انڈیز میں بھی قومی ٹیم کا حصہ نہیں تھے۔ شاداب خان نے کہا کہ اب بحالی صحت کی طرف گامزن ہوں، سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی۔